Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture 11. You have to open page number 6 of your English of class 9th. This is unit 1. Students, open this page from your textbook, page 6. Read question number 1. Today we will do exercise based questions. What type of land Arabia is? Question number 1. What type of land Arabia is? Students, further answers I have written on the board, but I have not written the questions. You have to read the questions and follow the answers with their numbers. So question number 1. Question number 1 is, what type of land Arabia is? What type of land is Arabia? अरेबिया अरब की सरजमीन कैसी है? अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ यूनिक चार्म एंड ब्यूटी. इट हैज़ trackless deserts of sand dunes with dazzling rays of tropical sun. It has starry sky which excited the imagination of poets and travelers. Listen again. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. It has trackless deserts of sand dunes with dazzling rays of tropical sun. It has starry sky which excited the imagination of poets and travelers. Students, क्वेश्चन नंबर 1 है, अरब की सरजमीन, बहुत इसका तर्जमा देख लें. अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ यूनिक चार्म एंड ब्यूटी. अरब की सरजमीन बेमिसाल कशिश और हुसन की सरजमीन है. इसके बेराह सहरा में रेत के टीले हैं जिन पर चमकदार शुआएं होती हैं गर्म सूरज की. इट हैज़ स्टारी स्काई. इसका तारों भरा आसमान जोश दिलाता है इमेजिनेशन, तख़य्युल को, ऑफ पोइट्स, शायरों और मुसाफिरों के. नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, why was the Holy Quran sent in Arabic? Why was the Holy Quran sent in Arabic? So follow the answer on the board. You have to note down all the answers on your sheets, blue sheets. Answer 2. The Holy Quran was sent in Arabic because it is comprehensive and living language. It was language of the Holy Prophet, and Arabs were eloquent and proud of their language. They could, so you correct it, we have to correct it. They could learn long poems easily. So this was question 2. The Holy Quran was sent in Arabic. कुरान पाक को अरबी में भेजा गया बिकॉज इट इज़ कम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज, ये समझ में आने वाली ज़बान है, एंड लिविंग लैंग्वेज, और जीती जागती ज़बान है. इट वॉज लैंग्वेज ऑफ द हॉली प्रॉफिट. इस यूज़ुर पाक सल्लम की ज़बान थी. एंड अरब्स वर एलोकेंट. अरबी बहुत जहीन लोग थे. एंड प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, और अपनी ज़बान पे फ़ख्र करते थे. दे कुड लर्न लॉन्ग पोइम्स इजीली. वो आसानी से लंबे नज़में लर्न कर सकते थे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? किस खसूसियत की वजह से अरबी मशहूर थे? द अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड एलोक्वेंस. दे कुड लर्न लॉन्ग पोएम्स एंड पोइट्री easily. They were proud of their eloquence. Student, listen. The Arabs were famous. Answer number 3. The Arabs were famous for their remarkable memory and eloquence. अरबी बहुत मशहूर थे अपनी अहम यादाश्त और जहानत की वजह से. They could learn long poems. वो लंबी नज़में याद कर सकते थे. एंड पोइट्री और शायरी इजीली, आसानी से. They were proud of their language, eloquence. वो अपनी जहानत पर फ़ख्र करते थे. Now question number 4. Question number 4 is, what was the condition of mankind before the Rasul? इंसानियत की क्या हालत थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले? आंसर 4.
The mankind stood on the verge of chaos. The people were dipped in superstitions, ignorance, and disbelief. There was no law, justice, or moral values. Listen, answer 4. The mankind stood on the verge of chaos. इंसानियत तबाही के किनारे पर खड़ी थी. The people were dipped in superstition. लोग तोहमात में घिरे हुए थे, ignorance जहालत में, and disbelief और गलत अकायद में. देयर वॉज नो लॉ, कोई कानून नहीं था, जस्टिस इंसाफ नहीं था, और मॉरल वैल्यूज और अखलाकी इकदार नहीं थे. क्वेश्चन 5. वाई डिड द रसूल स्टे इन द केव ऑफ हिरा? हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क्यों ठहरे? आंसर 5. when he was, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 years of his age, वो 38 साल के हुए, his stayed, वो गुजारते, इन केव ऑफ हिरा, गार हिरा में, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, टू मेडिटेट, या मराक़बा करने के लिए, एंड रिमेंबर, याद करने के लिए, अल्लाह फॉर डेज़, अल्लाह को दिनों तक, एंड वीक्स और हफ्तों तक. ही वांटेड टू थिंक, वो चाहते थे सोचना, सम वे, कोई तरीका, टू eliminate the evils of society, माशरती बुराइयों को ख़त्म करने के लिए. आंसर नंबर 6. What was the first revelation? पहली वही क्या थी? The first revelation received, पहली वही रिसीव हुई, in the cave of Hira, गार हिरा में, was the read in the name of your Lord, अपने रब के नाम से पढ़, who created man, जिसने तख्लीक किया, man आदमी को, from clot of लोथड़े से, of blood खून के लोथड़े से, read and your Lord, पढ़ और तेरा रब, is most merciful, बहुत रहमदिल है, who taught, जिसने सिखाया, by the pen, कलम के ज़रिए, taught what he knew, और वो सिखाया जो वो not, and taught what he knew not. Correct it, students. There is some correction here. Knew not. Yes. So, what is answer 7? Then answer 7. Why did pagan Arabs threaten the Rasul's uncle? मुशरिक अरबियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों धमकी दी? Answer 7. The pagan Arabs threatened the holy prophet's uncle. मुशरिक अरबियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकी दी, to stop के रोक दें, him उन्हें, from preaching new faith, नए ईमान की तबलीग से, तौहीद के. The new faith, नया ईमान, तौहीद, was थ्रेट, वो थ्रेट था, एक ख़बरदार करने वाली चीज़ थी, टू देयर प्रेस्टीज, उनके ईमान को, एंड डोमिनेंस, उनके गलबे को, इन द सोसाइटी, माशरे में. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड हज़रत आयशा से अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल? हज़रत आयशा ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बारे में क्या फरमाया? आंसर 8. इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, हज़रत आयशा हज़रत आयशा फरमाती हैं, ने फरमाया, हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर, उनके अखलाक और किरदार, आर एन एम्बॉडीमेंट, ज़िंदा मिसालें हैं, ऑफ द होली कुरान पाक की. इट मीन्स दैट, इसका मतलब है दैट लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट वॉज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमली नमूना है ऑफ होली कुरान पाक का. So student, that's all. This was exercise based questions. Hopefully you will understand the whole story and you have to learn it by heart and write on low sheet. This is your home task. Students, you have to solve the exercise by your own. So we have completed unit 1, exercise questions and reading comprehension. Allah Hafiz. Allah Hafiz.